हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन द आइडियल गैस इक्वेशन, हाउ डेंसिटी इज रिलेटेड इन आइडियल गैस इक्वेशन विद प्रेशर टेम्परेचर. सो लेट अस सी. As we have discussed PV equals to nRT in the last lecture, this was the ideal gas equation. PV equals to nRT. So PV equal to nRT. N is the number of moles, P is the pressure, N is the number of moles of gas, T is the absolute temperature, temperature in Kelvin, R is the gas constant, V is the volume of a gas, and that will be equal to, we are taking equal to the volume of the container, because the gas occupies the entire volume which is free space available in the container. So units of gas constant, units of R, R equals to we can write PV upon NT. So for example, we have to take for P pressure equals to 1 atmospheric pressure. At 1 atmospheric pressure, STP conditions, gas will occupy 22.4 liter volume upon 1 mole. For we are taking it for a 1 mole of a gas, as 1 mole of a gas occupies 22.4 liter volume at ideal conditions. So the temperature here will be 273 Kelvin. So when we will divide this, we will obtain R equal to 0.0821 liter atmosphere मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो ये आगे बेटा अपने पास एक R की यूनिट, R की वैल्यू है 0.082 लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीटर एटमॉस्फेयर. अब नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल. अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर equal to 1.01325 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square. This is equal to 1 atmosphere, as we have discussed in the last lecture. And 1 liter we can write equals to 10 raised to the power minus 3 meter cube. So by substituting these values in ideal gas equation and value of R, so R comes to be 0.0821, and instead of liter we are putting into 1.01325 into 10 raised to the power 5 into 10 raised to the power minus 3 Newton per meter square into meter cube mole inverse Kelvin inverse. So as meter square, this meter square will be cancelled by meter cube, and Newton into meter equals to joule. So this 10 raised to the power 5 and this 10 raised to the power minus 3. जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास 10 का फैक्टर 2 बच गया. 10 के फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 8.21, और इसको 1.301 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स टू बी वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. So this will be the value of R in terms of joule. Now for example, as 1 calorie is equal to 4.18 joule, तो उसकी टर्म्स कैलोरी की टर्म्स में निकालेंगे तो R को अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. So these are the different values of R in terms of calorie, joule and liter atmosphere. We will use this is according to the data available in the question.
किसकी टर्म्स में अपने को आर लेना है, तो वो हम जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जो डाटा अवेलेबल होगा उसके बिहाफ पे हम सेलेक्ट करेंगे इसमें बेटा। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो इसको डेंसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं हम, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था, एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स को दिस इंप्लाइज वी कैन राइट पीवी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। अब यहां से अपन वॉल्यूम को इधर लेके आ रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट प्रेशर इनटू मोलर मास will be equal to W upon V into RT, and W by V, this given mass upon volume, this is equal to the, this value we can put equal to the density. तो यहाँ से this implies density will be equals to PM by RT. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेंसिटी इज, अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास. Note, if P and T, pressure and temperature, are constant, then density will be directly proportional to the molecular mass of gas. So rho 1 by rho 2 we can write equals to m1 by m2. So this is how we will use the density relationship in terms of gas equation. Rho 1 by rho 2 equals to m1 by m2 we can use. अब देखो बेटा, ये तो था अपने पास डिफरेंट गैस कांस्टेंट की टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन के लिए. नाउ वी विल डिस्कस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. Dalton's law of partial pressures. As the name indicates, it was given by John Dalton, and it states that total pressure exerted by the mixture of gases in a container it states that total pressure exerted by a mixture of gases in a container is equal to the sum of partial pressure of gas which would exert by is equal to the sum of partial pressure of gas which would exert by a gas each gas taken alone. जब हर गैस को when taken alone, जब गैस को हम अलग अलग लेंगे तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो उसका जो सम होगा पार्शियल प्रेशर्स का, एक सेम कंटेनर में जब गैसेस को मिक्स कर देंगे तो वो उसके प्रेशर के बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल एक ए कंटेनर में यहाँ पे गैस को मिक्स, दिस इज ए गैस, इसका पार्शियल प्रेशर को मान लिया हमने पी ए प्लस नाउ वी आर टेकिंग बी गैस, उसका पार्शियल प्रेशर हो गया बी. नाउ वी आर टेकिंग सी गैस, तो उसका पार्शियल प्रेशर हो गया सी. तीनों का वॉल्यूम अपने पास वी वी है. अब इन तीनों गैसेस को एक सेम कंटेनर पे ट्रांसफर कर दिया, इसका वॉल्यूम भी वी है, तो पी टोटल, तो P टोटल ये क्या कह रहा है कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन अ कंटेनर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस. जब वॉल्यूम उसका सेम है तो P टोटल को हम बोल सकते हैं यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड सो ऑन. ऐसे n नंबर ऑफ गैसेस हैं तो वो उनके सम के बराबर होगा टोटल प्रेशर. द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस इज इक्वल टू द
sum of partial pressures of each gas when taken separately in the container of same volume. So for example, partial pressure of gas A, PA will equal to number of moles of A, Na is the number of moles, यहाँ पे हम number of moles of A Na, number of moles of B Nb, and number of moles of C will be Nc. So Na, number of moles of A into RT, यहाँ पे T will remain same, temperature and volume will remain same, RT by V. Similarly, PB we can write Nb into RT by V, PC we can write Nc into RT by V. So according to Dalton's law, P total will be equal to sum of partial pressure of A plus B plus C, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 गैसेस ले रहे हैं बेटा, तो इन 3 गैसेस का जब सम करेंगे हम तो RT by V सब में कॉमन आ जाएगा, तो ये अपन क्या लिख सकते हैं RT by V इंटू Na प्लस Nb प्लस Nc. अब यहाँ पे किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अपने को कैलकुलेट करना है, तो फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसको डिवाइड कर दो पी टोटल से, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना था अपने पास Na इंटू आर टी बाई वी, पी टोटल अपने पास हो गया Na प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू आर टी बाई वी. तो आर टी बाई वी से आर टी बाई वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो अपने पास पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपने पास आ गया Na अपॉन Na प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू पी टोटल. दिस विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए. अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये अपन पहले फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर सकते किया है इसको, उसको बोलेंगे हम मोल फ्रैक्शन. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल. एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस. Partial pressure of B will be equals to XB into P total. Partial pressure of C will be equals to XC into P total. These are the partial pressures of each components. So this is how we will calculate the partial pressure of each component. ये अपने पास डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर. तो एक तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, अगर टोटल प्रेशर गैसेस का गिवन है तो टोटल प्रेशर गिवन है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस उसके अंदर कैलकुलेट करना है, तो अपन इस टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं. वेयर x इज द, यहाँ पे ये x रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस रेस्पेक्टिवली. फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ A, B and C. सो दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. अब इसके बाद ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के इसको दिस इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस. ड्राई गैस का प्रेशर कितना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी गैस ऐड कर रहे हैं, दिस इज वाटर. सो ये यहाँ पे अपने पास P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसके बराबर बोल सकते हैं, P ऑफ गैस प्लस P ऑफ वाटर वेपर्स, क्योंकि यहाँ इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे दोनों का मिक्सचर होगा. इस जगह पे वाटर वेपर्स प्लस गैस दोनों प्रेजेंट होंगी, तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लिख सकते हैं P ऑफ गैस प्लस P ऑफ वाटर वेपर्स. तो यहाँ से P ऑफ ड्राई गैस विल बी इक्वल्स टू P टोटल माइनस P जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माइनस P ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज एक्वस टेंशन.
माइनस एक्वस टेंशन। सो ये पी टोटल अपन कैसे, ये कहां से ऑब्टेन करेंगे, दिस वी विल ऑब्टेन फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। और एक्वस टेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे, एक्वस टेंशन इट इज द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स विच आर प्रेजेंट अबव द सरफेस। Aqueous tension is the pressure of water vapors above its surface. This is how we will calculate the aqueous tension by using Dalton's law of partial pressures. So this is Dalton's law of partial pressures. Next we are going to discuss Graham's law of diffusion or effusion of gases. Graham's law of diffusion or effusion of gases. What is it states? देखो बेटा इसमें सबसे पहले अपने पास टर्म आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब स्प्रेडिंग आउट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। Spreading out of particles spreading out of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration is known as diffusion. अब उसके अंदर अपने पास एक नेक्स्ट टर्म आती है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब जैसे अपने पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर अपन ने पर्स करके उसमें छेद कर दिया एक छोटा सा, तो उस छेद में से जो प्रेशर के ऊपर जो गैस थी वो बाहर निकलना। इफ्यूजन मीन्स मूविंग आउट ऑफ अ गैस थ्रू अ स्मॉल ओरिफिस इज नोन एज इफ्यूजन। Moving out of a gas through a small hole or orifice is known as effusion. तो इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा अपने पास, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ये अपने को बताता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to the square root of the density of a gas. It states that rate of diffusion or effusion of a gas rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of density of a gas. So what we can write from the statement, rate, R is the rate, rate is inversely proportional to the square root of density, D is the density of a gas. अब as we know that twice of vapor density of a gas will give the molar mass.
मोलर मास ऑफ अ गैस, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी विल गिव यू द मोलर मास ऑफ अ गैस। तो यहाँ से अपन इसको कंपेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2/D1, दो गैसेस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन। एंड एस यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, सो वी कैन राइट R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1. अब this law is applicable when the temperature and pressure conditions remain same. This statement, the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of density of a gas when T and P, when temperature and pressure remain same. बेटा जब temperature pressure same रहेगा तो square root, अब देखो how it depends on temperature, तो ये अपने पास rate of diffusion in terms of density and molar mass. Now how it is dependent on temperature of a gas. देखो बेटा अपने पास rate is directly proportional to the pressure of a gas. प्रेशर गैस का जितना ज्यादा होगा तो उसका रेट इतना ही ज्यादा होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस। अब देखो इफ T एंड P आर ऑल्सो वेरिएबल, T और P भी वेरिएबल है तो रेट को हम क्या बोल सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अंडर रूट ऑफ T। तो यहां से R1/R2 फॉर एग्जाम्पल केस 1 व्हेन P रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है तो R1/R2 को क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 इंटू T1/M1 इंटू T2। केस सेकेंड, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा तो अपना रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P1/P2 अंडर रूट ऑफ M2/M1। अब देखो जैसे एरिया ऑफ ऑर्फिस का एरिया जितना ज्यादा होगा तो गैस इतनी जल्दी बाहर निकलेगी उसके अंदर से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ऑर्फिस ए। उसकी टर्म्स में भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ऑर्फिस। रेट को डिफरेंट टर्म्स में देखो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऐसे बोल सकते हैं अपन, रेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिफ्यूज्ड और रिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। तो सेम टाइम के लिए अगर डिफ्यूजन और रिफ्यूजन हो रहा है अपना, तो देखो बेटा अपन क्या बोल सकते हैं, इफ टाइम इज सेम, अगर टाइम सेम है तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। तो अपन यूज कर सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू V1/V2, वॉल्यूम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। वो रिलेशन जो भी अपन रिलेशन यूज करेंगे उसमें देखेंगे कि टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वो उसके अकॉर्डिंग ये पुट कर देंगे हम इसमें। तो ये कब लगेगा अपने पास, जब TPA एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट है तो वॉल्यूम, अब अगर टाइम वेरिएबल है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपन उसके साथ रिलेशन यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये डिफरेंट रिलेशन है, इसमें सब आपको ये याद रखना है कि कांस्टेंट किस फैक्टर को रख रहे हैं हम, और जिस फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हैं वेरिएबल के साथ बाकी उसकी रिलेशन सेट करनी है अपने को। नेक्स्ट जो है अपने पास, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट सो वी कैन यूज R1/R2। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इज इक्वल टू T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
m2/m1। तो इस तरीके से हम डिफरेंट रिलेशंस ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए यूज कर सकते हैं। क्या आपने टेम्परेचर कंडीशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, एरिया सेम है, या जो भी फैक्टर्स वेरिएबल है, तो उनको सबको हम असेंबल करके डेंसिटी की फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी की फॉर्म में भी पुट किया जा सकता है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैसेस। नाउ सम फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हम यूज करते हैं जैसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट और प्रेशर कोएफिशिएंट, पी अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, और अल्फा पी वी कैन पुट इसको प्रेशर कोएफिशिएंट अल्फा पी। तो यहाँ पे अपना वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, तो प्रेशर कोएफिशिएंट अल्फा पी इट इज इक्वल टू द increase in pressure when volume remains constant divided by pressure of a gas एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अल्फा पी को हम पुट कर सकते हैं, दिस इंक्रीज इन प्रेशर पी टी माइनस पी नोट। पी नोट इज द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड पी टी इज द प्रेशर विद 20 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अपॉन पी नोट इंटू टी। दिस विल बी द प्रेशर कोएफिशिएंट। पी टी इज द प्रेशर एट t डिग्री सेल्सियस, पी नोट इज द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस and T is the temperature. In the same way we can write, जैसे ये प्रेशर कोएफिशिएंट लिखा बेटा हमने, इस प्रेशर कोएफिशिएंट की जगह पे हम अल्फा पी, नाउ वी कैन राइट वॉल्यूम कोएफिशिएंट। वॉल्यूम कोएफिशिएंट इज अल्फा पी, और यहाँ पे अपन प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। सो दिस वॉल्यूम कोएफिशिएंट, इसको सेम ऐसे, वो जो प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, इट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज द increase in volume at constant pressure with T degree rise in temperature divided by volume at 0 degree Celsius. So by using this relation we can write volume coefficient अल्फा वी को हम पुट कर सकते हैं बेटा यहाँ पे वी टी, वॉल्यूम एट टी डिग्री विद राइज इन टी डिग्री सेल्सियस माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन वी नोट इंटू टी। Vt is the volume at T degree Celsius, V naught is the volume at 0 degree Celsius and T is the temperature. इस तरीके से हम प्रेशर कोएफिशिएंट और वॉल्यूम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे बेटा हम। नाउ परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
ये बराबर होता है अपने पास मॉइस्चर कंटेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर्स divided by vapor pressure of वाटर वेपर्स इनटू 100। इस तरीके से हम परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। सो दिस इज द डिफरेंट टर्म्स वी विल यूज, प्रेशर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये वॉल्यूम कोएफिशिएंट, ये इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो उसमें प्रेशर की जब प्रेशर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डिफरेंट जो इंक्रीज इन प्रेशर है उसको डिवाइड कर देंगे अपन प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस से और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कितने भी टेम्परेचर राइज किया गया है तो उसके ब्याह पे अपन प्रेशर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम वे जब वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कोएफिशिएंट में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा अपने पास, और जब वॉल्यूम कोएफिशिएंट निकालना है तो वॉल्यूम कोएफिशिएंट के केस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो अभी हमने इस लेक्चर में अभी तक डिस्कस किया है एक तो रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी विद मोलर मास एंड प्रेशर ऑफ अ गैस इन आइडियल गैस इक्वेशन, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट दैट वी विल यूज, और न्यूमेरिकल में हम देखेंगे हमारे पास किस के फॉर्म में डाटा अवेलेबल है तो उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हम आर की यूनिट पुट करेंगे उसमें गैस कांस्टेंट की। उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नाउ वी विल डिस्कस द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम केटीजी से जानेंगे, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिफरेंट थ्योरीज अपन ने डिफरेंट लॉज पढ़े, ये सब गिवन दिए गए थे तो उन सब का एक तरीके से उनको असेंबल किया गया और उनकी गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। तो उसके ब्याह पे डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट अप्रोचेस थी। फॉर एग्जांपल क्लोसियस स्टेटमेंट, बर्नौलीज का स्टेटमेंट, मैक्सवेल की अप्रोच, तो उनके ब्याह पे उन्होंने एक जो सभी फैक्टर्स को रिलेटेड टू द गैसेस उनको असेंबल किया। तो उसको अपन पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कि क्या गैसेस के बारे में वो डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, और फिर उसको कौन सी प्रॉपर्टी को वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट प्रूव करता है गैसेस के लिए। सो लेट अस सी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके पोस्टुलेट्स, तो पोस्टुलेट्स में अपने पास सबसे पहले फर्स्ट आता है कि सभी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस जैसे नोबल गैसेस हैं तो वो तो एटम्स की फॉर्म में होंगी, या जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर आइडेंटिकल इन, जैसे पर्टिकुलर गैस है, पर्टिकुलर गैस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की फॉर्म में, जैसे शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, उनका वो सब सेम होगा फॉर अ पर्टिकुलर गैस। Every gas is made up of similar kind of atoms or molecules which are identical Every gas is made up of similar kind of atoms or molecules which are identical in different aspects like mass, shape, volume, etc. ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। सो ये किस बात को प्रूव करता है? ये बेटा इस बात को प्रूव करता है कि जो गैसेस हैं
गैसेस के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, ये पोस्टुलेट उसका। सो दिस पोस्टुलेट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द गैसेस। ये गैस के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसियस मॉलिक्यूल्स दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में गैस को एनक्लोज कर रखा है हमने, तो उस गैस के कंटेनर के रेस्पेक्ट में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो नेग्लिजिबल है, ऐसा बताया इसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने। As gas molecules are far apart, so the volume of the gaseous molecules is negligible as compared to the volume of container. Container के respect में volume of gaseous molecules negligible होगा. So what it proves? It proves that they occupy the entire space. It shows gases occupy entire space available in the container. जो कंटेनर में पूरा स्पेस अवेलेबल है उसको पूरी गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे. थर्ड, देखो मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर है, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस दे आर इन रैंडम मोशन, वो चलते रहते हैं, and the forces of attraction or repulsion between the gaseous molecules are negligible. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, उनके बीच में नेग्लिजिबल है. इसीलिए जो हम प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर लेते हैं बाय कैलकुलेटिंग द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो उनके बीच में नेग्लिजिबल है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है इसलिए मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट रहेंगे और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं. दैट इज वाई melting points and boiling point of gases is very low. Boiling point of gases is lower. So these are the different
three different postulates related to the kinetic theory of gases. Now the next postulate is देखो मोशन कर रहे हैं बेटा, तो फिजिक्स में न्यूटन्स के बारे में पढ़ते हैं। मोशन जब शब्द आता है कहीं भी तो न्यूटन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। Newton's laws of motion are applicable on the gaseous molecules. जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो बेटा नेग्लिजिबल होते हैं। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगे तो क्या होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होता है, दैट इज व्हाई गैसियस मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट सेटल डाउन। दैट इज व्हाई दे डू नॉट सेटल डाउन, वो सेटल डाउन नहीं होंगे। अब देखो बेटा, जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जब टकराते हैं तो उनके बीच में एनर्जी लॉस होना चाहिए, लेकिन उनके बीच में एनर्जी लॉसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स नीचे उनकी एनर्जी कांस्टेंट एनर्जी के साथ मूव करते हैं और वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कोलिजन्स बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट अज्यूम्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज नो लॉस इन देयर एनर्जी। That is why we can say gaseous molecules जो होंगे बेटा अपने पास, gaseous molecules they move with constant energy, वो constant energy के साथ move करेंगे gaseous molecules। जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो सेम एनर्जी के साथ द gaseous molecules will move। प्रेशर ऑफ अ गैस, जो गैस का प्रेशर है, द मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कोलाइडिंग रैंडमली ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, सो द प्रेशर ऑफ द गैस इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
हम गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। उसके भी पे हम गैस के प्रेशर को डिफाइन करेंगे कि गैस, और ये किस तरीके से कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर साइकिल ट्यूब है, ट्यूब के अंदर प्रेशर इंक्रीजेस, जब P इंक्रीज मोर एंड मोर जब एयर डालेंगे हम तो क्या कह सकते हैं, वो ट्यूब इन्फ्लेट्स। मोर एयर, ट्यूब फूलेगी, फूलेगी तो उसके अंदर जो अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे, ज़्यादा होगा, हेंस प्रेशर इंक्रीजेस ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। अब काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स है, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की डिफाइन नहीं करते हैं, वो हम सब मॉलिक्यूल्स की डिफाइन करेंगे। तो वो क्या कह सकते हैं हम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज अ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि अगर गैस का जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और ये हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे हॉट गर्म हो जाता है गर्मी के अंदर, तो गर्मी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस की मॉलिक्यूल्स तेज मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ जाती है उनकी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। और काइनेटिक एनर्जी हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करेंगे। So kinetic energy is a function of temperature, or what we can say that kinetic energy of the gaseous molecules increases with rise in temperature. We can say kinetic energy is directly proportional to T. तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर का और गैसियस मॉलिक्यूल्स का, T increases, hence kinetic energy also increases। और मॉलिक्यूल सब डायरेक्शन के अंदर उनके अंदर रैंडम मोशंस इंक्रीज हो जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट पोस्टुलेट्स रिलेटेड टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये जो पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनके ब्याह पे अपन रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट इज वी विल डिस्कस इन द काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन। So this is all in today's lecture. So thank you.